तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी में जो भी क्वेश्चन इसमें होंगे लगभग 500 550 के आसपास देख सकते हैं क्वेश्चन है लगभग। और इससे जो है पूरा एनाटॉमी का रिव्यू हो जाएगा जिससे ए टू जेड जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। और ये आप समझ सकते हैं कि ये एक एक क्वेश्चन जो है पूरा लगभग 580 के आसपास क्वेश्चन है, इसमें 580 क्वेश्चन है। और इसमें जो है हर एक क्वेश्चन में ये इस टाइप से क्वेश्चन है कि पूरा ये कनेक्ट करता है एनाटॉमी को और सुपरफिशियली पढ़ेंगे। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 580 क्वेश्चन है और मेरा एनाटॉमी का एग्ज़ाम है और ओरल एग्ज़ाम है, इसी के लिए मैं इसका तैयारी कर रहा हूँ। तो ये पूरा पढ़ना है तो मैं भी पढ़ रहा हूँ तो और कैसे पढ़ रहे हैं। और इससे जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ये PDF के साथ क्वेश्चन करेंगे और फिर क्रोम पर सर्च करेंगे, इसका शॉर्ट आंसर लेंगे, फिर यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ये लगभग जो है 5 से 6 घंटे का होने वाला है। तो समझते भी जाएंगे और हिंदी में एक्सप्लेन भी करते जाएंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम द एनाटॉमिकल यहाँ पर जो है एनाटॉमिकल पोजीशन और इसके बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है। For descriptive purposes, the body is always imagined to be in the anatomical position, standing erect, arms by sides, palms of hands facing forwards. In this position, directions are given by superior, inferior, anterior, posterior. These are equivalent to the zoologist's cephalic, subcaudal, ventral and dorsal. Thus the eyes are always superior to the mouth, even if the patient is lying down or standing on his head. These terms are not quite equivalent to above, below, in front of and behind. To a layman, acrobat's feet are above her head when she is dangling from a trapeze. To an anatomist they are inferior. Other dimensions are referred to the midline, median, medial or lateral, or to their closeness to the body surface, superficial or deep. In the limb structures near the trunk are proximal, those further away are distal. We have a problem with the hands and feet. The palms of the hands resemble the soles of the feet and the thumb is equivalent to the great toe. But the palmar surface of the hand faces anteriorly and the back is dorsal. In the foot we defy logic and call the inferior surface plantar equivalent to palmar and the superior surface dorsal, even though it faces upwards. But we are still not out of the wood because the great toe is medial but the thumb is lateral. To get around this, the term preaxial is often used to describe the thumb or great toe side. Postaxial is the little toe or little finger side. The axis referred to runs to the tip of the middle finger or the second toe. The other small problem, the penis, is described in its erect position, so that its dorsal surface faces anteriorly and superiorly when detumescent. We also need to define planes, mutually at right angles. The horizontal plane is clear enough, the other two are a little less so. The sagittal plane, L, sagitta, an arrow probably refers to the sagittal suture which runs from anterior to posterior in the newborn skull, and has an arrowhead in the form of the frontal fontanelle. Coronal is also difficult since it means crown, and I always think of a crown as being horizontal. But this is an older usage, as in the crown of an arch or a tooth, or the road, meaning something more like a halo. Once again these refer to the anatomical position. तो हम लोगों ने जैसा देख लिया तो फिर हम यहाँ पर फर्स्ट सब लाइन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन होता है, उसके बारे में बात करते हैं कि स्टैंडर्ड पोजीशन कैसा है और हम दिखाएंगे भी कि कैसा स्टैंडर्ड पोजीशन होता है एनाटॉमिकल स्टडी के लिए। डायरेक्शन, इसके टर्म, एक्सेस एंड द प्लान ऑफ द बॉडी के बारे में बात करेंगे। फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज द बॉडी इज ऑलवेज इमेजिन। जब हम डिस्क्रिप्टिव पर्पज पर स्टडी करते हैं एनाटॉमी और हम इमेजिन करते हैं टू बी द एनाटॉमिकल पोजीशन, जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में हम इमेजिन करते हैं और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम स्टैंडिंग इरेक्ट, तो हम लोग स्टैंडिंग मतलब एक बॉडी को इरेक्ट करते हैं जैसे कि बॉन्ड रहता है। और आपने ह्यूमन एनाटॉमी में देखा होगा कि बॉन्ड जो रहता है वो कैसे स्केलेटल सिस्टम कैसे रहता है, वो सब आपने देखा होगा लेकिन ऑब्जर्व नहीं किया होगा। तो फिर इसके बारे में भी ऑब्जर्व करने का तरीका बताएंगे। आर्म्स बाय साइड्स, आर्म्स जो है वो सब बाय साइड्स रहता है। पाल्म्स ऑफ हैंड फेसिंग टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे कैसे रहता है वो भी आगे बताएंगे। ये सब बताया जाता है कि ऐसे इसका एनाटॉमिकल पोजीशन जब स्टडी करते हैं तो उस तरह से यहाँ पर रहता है।
इन दिस पोजीशन डायरेक्शन आर गिवन बाय सुपेरियर, यहाँ पर बताया गया कि कुछ टर्म है जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए जो है, और कभी भी अगर पता ना होता है तो उसकी लोकेशन होता है सुपेरियर इन्फीरियर, तो उस टाइप से हम बताएंगे। कोई भी पार्ट होता है तो सुपेरियर इन्फीरियर इंटीरियर पोस्टीरियर, दीज आर इक्विवेलेंट टू जूलॉजिस्ट सेफेलिक, ये सब जो है इक्विवेलेंट है जूलॉजिस्ट सेफेलिक। सेवन कॉर्डल वेंट्रल डोर्सल देखने को मिलेगा, डोर्सल वेंट्रल और डोर्सल भी। दस द आई आर ऑलवेज सुपेरियर टू द माउथ, सुपेरियर का मतलब होता है ऊपर, और यहाँ पर जो है माउथ के ऊपर में जो है, माउथ के ऊपर में ऊपर जो है आई रहता है, तो आई सुपेरियर हो गया माउथ के, ठीक है। इवन इफ द पेशेंट इज लाइंग डाउन स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, जब कोई भी पेशेंट नीचे की ओर झुका हो तो भी तो उसके लिए आई जो है वो सुपेरियर ही होगा एज कम्पेयर टू माउथ। यहाँ पर जो है चाहे सोया हो, लेटा हो या तिरछा हो, कोई भी हो, लेकिन जो है एक एनाटॉमिकल जैसे ये फंक्शन है बॉडी का, और ये जैसे ये डिजाइन किया है इसी टाइप से यहाँ पर ये सुपेरियर है, तो ये नीचे ये अगर यहाँ पर टर्न भी हो जाता है तो ऐसे भी ये सुपेरियर ही रहेगा। ये जो है डायरेक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे कि क्वाइट सुपेरियर टू द माउथ इवन पेशेंट इज लाइंग डाउन और स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, शीर्षासन की बात कर रहा है ये। एक एग्जांपल है हम लोगों के सामने, दिस टर्म्स आर नॉट क्वाइट इक्विवेलेंट टू अबव, ये कुछ टर्म जो है नॉट इसके लिए जो है नहीं, ऐसा नहीं है कि वही आइडेंटिफाई नहीं करता, और भी कुछ ऐसे टर्म दिए गए हैं जो कि सभी तरह के सब जगह पर, सब अलग अलग जगह पर काम वर्क करता है, तो फिर उसके लिए और भी टर्म दे दिया गया है। वो बिलो इन फ्रंट ऑफ द एंड बिहाइंड इक्विवेलेंट टू अबव, सुपेरियर जो है अबव, और बिलो इन फ्रंट ऑफ टू इन फ्रंट एंड बिहाइंड टू ए लाइमन एक्रोबैट्स, लाइमन एक्रोबैट्स फीट आर अबव हर हेड। तब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या था, लिम्स, टू लाइमन एक्रोबैट्स, ये टू या तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं, अष्टावक का जो है पेड़, पेड़ जो था सर के ऊपर रख करके चलता था, क्योंकि वो डिसेबिलिटी था उसको, तो उसके लिए भी यही अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि अगर उसका पैर उसके सर के ऊपर में वो रख करके चलता था तो वो सुपेरियर हो जाएगा। तो एक बार ऐसा भी है, लाइमन एक्रोबैट्स जो है वो हर हेड, उसका जो है फीट जो है उसके हेड के ऊपर था। व्हेन सी जे डेंगिंग फ्रॉम ए ट्री पीस, जब वो डेंगिंग करता था, टू एन एनामिस्ट दे आर इन्फीरियर, और इन्फीरियर वो शो करता था। अदर डायमेंशन आर रेफर टू द मिड लाइन, और जो भी था वो मिड लाइन, मीडियन, और कुछ ऐसे मीडियन, मीडियल और लेटरल और भी टर्म सब हैं। देयर क्लोजनेस टू बॉडी सरफेस, और देयर क्लोजनेस टू बॉडी सरफेस, और इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। और सुपरफिशियल यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सुपरफिशियल और डीप देखने को मिलेगा इन द लिम्स, लिम्ब स्ट्रक्चर में नियर द ट्रंक और प्रोक्सिमल और डिस्टल भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये अगर इमेज के साथ हम लोग समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्त फर्दर अवे आर डिस्टल, और प्रोक्सिमल एंड डिस्टल देखने को मिलेगा, डोर्सल एंड वेंट्रल, सुपेरियर इन्फीरियर सब भी देखेंगे। वी हैव अ प्रॉब्लम विद द हैंड्स एंड फीट, और जो है हमें प्रॉब्लम होता है हैंड्स और फीट में। द पाल्म्स ऑफ द हैंड रिसेम्बलिंग टू सोल्स ऑफ द फीट एंड थंब, जो हाथ का, जैसे कि हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो वी हैव प्रॉब्लम विद द हैंड, ये जो समस्या है हमें हैंड एंड द फीट में हमें देखने को मिलता है। और जैसे द पाल्म ऑफ द हैंड रिसेम्बल्स द सोल्स ऑफ द फीट, जैसा कि हम लोगों का हैंड है वो वैसा ही सोल जो है फीट के सोल से ये सिमिलरिटी है। एंड द थंब इज इक्विवेलेंट टू द ग्रेट, तो और जो है यहाँ पर थंब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हाथ का थंब, और ये सब सिमिलरिटी मैं आगे बताऊँगा जब इमेज में होगा। तो but the palmar surface of the head, palmar surface of the hand, palmar surface of hand faces anteriorly and the back is dorsal, तो हैंड में जो है एंटीरियर और डोर्सल
पाल्मर में देखने को मिलेगा। एंटेरियर वो कैसे फेसेट रहेगा। डोर्सल इन द फुट वी डीपली लॉजिक, जबकि फुट में जब वी डीपली लॉजिक एंड कॉल द इन्फीरियर सरफेस और प्लेंटेलर, इन्फीरियर सरफेस प्लेंटेलर इक्विवेलेंट टू पाल्मर। और यहाँ पर जो है अंगूठा, पैर का अंगूठा जो है वो सिमिलर इक्विवेलेंट होता है पाल्मर। एंड द सुपेरियर सरफेस डोर्सल, और सुपेरियर सरफेस जो है वो डोर्सल होता है। इवन दो इन फेसेस अपवर्ड, जो कि वो ऊपर की ओर रहता है फिर भी। बट वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड, बट वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड बिकॉज द ग्रेट टो इज मीडियल बट द थंब इज लेटरल। यहाँ पर जो ग्रेट टो जो है वो मीडियल रहता है और थंब जो होता है लेटरल पोजीशन में होता है। टू गेट अराउंड दिस द टर्म प्रीएक्सियल इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द थंब। और प्रीएक्सियल जो है यहाँ पर प्रीएक्सियल टर्म जो है वो डिस्क्राइब करता है थंब और ग्रेट टॉय के लिए। पोस्ट एक्सियल इज़ द लिटिल टॉय, पोस्ट एक्सियल जो है लिटिल टॉय जो सबसे छोटा अंगूठा होता है पैर का अंगूठा उसके लिए। और लिटिल फिंगर साइड ये पोस्ट एक्सियल दिखाता है। द एक्सिस रेफर टू रन्स टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर, द एक्सिस रेफर टू रन्स टू द टिप ऑफ मिडल फिंगर, मिडल फिंगर के टिप और द सेकेंड टॉय को ये डिनोट करता है एक्सिस। द अदर स्मॉल प्रॉब्लम, द पेनिस इज डिस्क्राइब्ड इन इट्स इरेक्ट पोजिशन। और जब भी पेनिस हमें बात करते हैं तो वो डिस्क्राइब करते हैं तो वो इरेक्ट पोजिशन में ही करते हैं। So that its dorsal surface faces anteriorly and so that its dorsal surface faces anteriorly and superiorly when detumescent. We also need to define planes, और यहाँ पर जो है ना हम planes के बारे में वीडियो डिफाइन करें म्यूचुअली एट राइट एंगल्स। और ये राइट एंगल पर 90 डिग्री पर द हॉरिजेंटल प्लेन्स क्लियर इनफ, और ये हॉरिजेंटल वर्टिकल सब भी देखेंगे। और द अदर टू आर लिटिल लेस सो। द सेजाइटल प्लेन जो होता है वो लेटर सेजाइटल एंड एरो, एल सेजाइटल एंड एरो प्रोबेबली रेफर टू द सेजाइटल स्वीचर, और ये सेजाइटल स्वीचर को दिखाता है। विच रन्स फ्रॉम एंटेरियर टू पोस्टीरियर, और यहाँ पर एंटेरियर पोस्टीरियर के भी बारे में बात करेंगे। इन द न्यू बॉर्न स्कल, और ये बच्चे के स्कल के बारे में हमें देखने को मिलेगा। इन एंड हैज एन एरो हेड इन द फॉर्म ऑफ द फ्रंटल फ्रंटाइल, और वहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है फ्रंटल फ्रंटाइल पर एक एरो हेड देखने को मिलता है। कोरोनल इज आल्सो डिफ़िकल्ट, और कोरोनल जो है ये आल्सो डिफ़िकल्ट है। सिन इट मीन्स क्राउन, ये जो है ये कोरोनल क्राउन के जैसा है, और ये सब भी डिस्क्राइब करना होगा। एंड आई ऑलवेज थिंक ऑफ क्राउन एज बीइंग हॉरिजेंटल, और कोरोनल ये जो है हॉरिजेंटल लाइन में हम लोगों को कोरोनल देखना पड़ेगा। और जो जब हम इमेज से इसको स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और अच्छे से समझ में भी आएगा। और ये थ्योरी पढ़ने से नहीं, यहाँ पर इमेज देखना ही पड़ेगा। ये एनाटॉमी, बट दिस इज एन ऑर्डर यूजेज। जब आप वो एक बार देख लेते हैं इमेज सब, तो फिर उसके बाद ये अगर पढ़ेंगे तो 100% आपको सब समझ में आएगा। इन द क्राउन बट दिस इज एन ऑल्डर, यहाँ पर but this is an older usage as in the crown of an arc or a tooth or the road, meaning something more like a halo. Once again these refer to the anatomical position, और जो है ये सब अब anatomical position के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये अगर बाद में पढ़ना चाहें तो आपको इसके PDF दे देंगे, और लगभग मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। फिर इसको हम क्रोम पर सर्च करते हैं और इससे डिटेल्ड जितना भी हम देख सकते हैं उतना इमेज देखेंगे, जिससे कि हमें सभी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर सभी पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर क्या क्या था, कितने प्लेन थे, उस सब के बारे में। सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ से लेते हैं एनाटॉमिकल और क्रोम पर जाते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन, तो यहाँ पर एनाटॉमिकल पोजीशन एंड एनाटॉमिकल प्लेन्स ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पर देख सकते हैं
the three planes What are the anatomical positions in the anatomical planes of the body? What are the anatomical positions in the anatomical planes of the body? के लिए image परिणाम. The three planes of the body are the sagittal plane, the coronal plane, and the transverse plane. These planes are imaginary reference points that divide the body into various sections in order to help describe relative anatomy. और यहाँ पर पोजीशन एंड द एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में तो बात करें तो इसमें 3 प्लेन होता है। अगर ये इमेज है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सभी ये जो है ऊपर की ओर जाओ आप देख रहे हैं और ये देख सकते हैं ये जो है स्टैंडर्ड डायग्राम है। यहाँ पर हाथ देख सकते हैं, ये आपका वेंट्रल है और इसके पीछे जो है डोर्सल देखने को मिलेगा और यही इसका जो है ना मतलब इसी टाइप से वहाँ पर ये डायग्राम है और इसी को समझाने का कोशिश किया गया था थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर हम लोग सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले ट्रांसवर्स प्लेन में देखिए ये लाइन है यहाँ पर और ये बॉडी को अगर आप इसको कट देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर ये आप देखेंगे तो ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ये ट्रांसवर्स प्लेन से और ट्रांसवर्स सेक्शन करके हम लोग किसी के भी यहाँ से जो भी पार्ट सब जा रहा है उस सब के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ट्रांसवर्स यहाँ से भी कट करें तो इसके जिससे जो भी आर्टरी वेन्स सब जा रहा है ये सब इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात होती है यहाँ पर इसको कट करते हैं, कट किया, ओह सॉरी, यहाँ पर आ गए। फिर यहाँ पर देखिए ये ऊपर लाइन जो है ये ऊपर वाली लाइन जो है ये सुपेरियर है, ये ऊपर की ओर सुपेरियर, नीचे इन्फेरियर, ये आप देख सकते हैं सुपेरियर इन्फेरियर सैजिटल पहले सुपेरियर और ये लेटरल है, ये अगर इधर जाए तो लेटरल और ये भी लेटरल और ये मिड लाइन है और इसको यहाँ पर मीडियल बोलते हैं। इसको इधर की ओर जाते हैं तो लेटरल और इधर की ओर आते हैं तो मीडियल। सुपेरियर इन्फेरियर भी हो गया, एंटेरियर और पोस्टेरियर, ये आगे की ओर जो देख रहे हैं ये सब इंटीरियर हो गया और इसके पीछे जो है ये सब पोस्टेरियर हो गया। ठीक है, अब 3 प्लेन यहाँ पर है, ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सैजिटल प्लेन जो है ये इस टाइप से इसे कट कर रहा है, यानी कि इस लेफ्ट और राइट को कट कर रहा है, तो लेफ्ट और राइट को कट करने वाला सैजिटल प्लेन है। और ये मीडियल और लेटरल को भी बोल सकते हैं कि कट करता है लेटरल और मीडियल को, तो सैजिटल प्लेन, और इसके बारे में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। एंटीरियर और पोस्टीरियर को कट करने वाली लाइन को बोलते हैं कोरोनल प्लेन। ये एंटीरियर है, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर पीछे की ओर एंटीरियर, इस वाले की बात कर रहे हैं तो, और इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर को कट कौन कर रहा है, कोरोनल सैजिटल कोरोनल प्लेन जो है इस टाइप से चल रहा है, ये कट करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो सुपेरियर और इन्फीरियर को कट करने वाला ट्रांसवर्स प्लेन और इंटीरियर और पोस्टीरियर को कट करने वाला कोरोनल प्लेन। सैजिटल प्लेन लेफ्ट एंड राइट या लेटरल और मीडियल में अगर कट करें, अगर इस टाइप से कट करें तो वो सैजिटल प्लेन, और बीच से बीचों बीच लाइन जो होता है उसको बोलते हैं मीडियल लाइन, मीडियल प्लेन। और भी एग्जाम देखते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए सैजिटल प्लेन यहाँ पर कट कर रहा है, ये ट्रांसवर्स, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मीडियल प्लेन हमें छाती के बीचों बीच दिख रहा है, चेस्ट के बीचों बीच। फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन, इन दोनों से ये हो गया। फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन बोलने का बात एक है, मीडियल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलते जाएगा और हम दिखाते जाएंगे। सैजिटल प्लेन भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जितना इमेज दिखिएगा उतना क्लियर होगा कि मीडियल प्लेन में बीच से काट रहा है, फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन यहाँ पर इंटीरियर और पोस्टीरियर को कट कर रहा है। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन ट्रांसवर्स सुपेरियर और इंफीरियर और इंफीरियर को कर रहा है सैजिटल प्लेन। लेफ्ट और राइट बोल सकते हैं या लेटरल और मीडियल को कट करने वाला सैजिटल प्लेन है। अब ये से यहाँ से निकलते हैं और इससे अच्छा डायग्राम जो है हम बाद में देखेंगे। अब
पीछे वाला जो है डोर्सल है। यहाँ पर ये प्रोक्सिमल है, ये डिस्टल है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर हैंड में देख रहे हैं ये प्रोक्सिमल डिस्टल मीडियल लाइन यहाँ पर है, लेटरल और मीडियल, लेटरल इधर की और मीडियल इधर की। अरे मीडियल लाइन अगर मीडियल लाइन की ओर जाता है तो मीडियल, और लेटरल इधर होता है। ये मीडियल लाइन देख सकते हैं, लेटरल हुआ, प्रोक्सिमल, और ये राइट एंड लेफ्ट, सुपेरियर ऊपर में है, इन्फीरियर नीचे की, और सुपेरियर ऊपर, मिड लाइन यहाँ पर ये है। चलिए ये कंप्लीट हुआ, और इसमें कुछ और तो नहीं है। प्रोक्सिमल डिस्टल तो ये सभी इंटीरियर पोस्टीरियर सभी प्लेन सभी डिस्कवर हो गए। सेजेटल प्लेन, कोरोनल प्लेन भी देखें, पोस्टीरियर इंटीरियर पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स प्लेन्स या हॉरिजेंटल भी बोल सकते हैं, वर्टिकल में सेजेटल बोल देंगे। प्रोक्सिमल डिस्टल ये फीट में देख सकते हैं, ये सुपेरियर इन्फीरियर देखने को मिला है, लेटरल इधर और मीडियल इधर की ओर। यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कुछ, एक बार फिर से पूरा कॉपी करते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी इमेज आएगा वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आते हैं और इसी को अगर पूरा कॉपी कर देते हैं तो फिर देखते हैं कौन सा इमेज आता है। हाँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा ये इसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है। इंटीरियर जो है, इंटीरियर इन फ्रंट और फ्रंट बोल सकते हैं, प्रोक्सिमल क्लोजर और टुवर्ड्स द ट्रंक और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट। प्रोक्सिमल के जहाँ से किसी भी बॉडी पार्ट का ओरिजिन होता है। मीडियन, मिड लाइन ऑफ द बॉडी के मिड लाइन की बात कर रहे हैं। मीडियल टुवर्ड्स द मीडियल, लेटरल टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द मीडियल। ये सब टर्म याद करके रखना है। और इमेज से देखते हैं, इमेज इसमें अगर अच्छा कोई दिखाए तो ये तो हम लोगों ने कर लिया। ये एक अच्छा इमेज दिख रहा है, इससे अच्छे से समझ में भी आएगा। सब अलग अलग है। ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजेंटल प्लेन इसको बोलते हैं। ये सुपेरियर और इन्फीरियर, मीडियल और लेटरल, सुपेरियर और इन्फीरियर को कट देते हैं। सुपेरियर आप इधर है और इन्फीरियर नीचे की ओर, इसको कट करने वाले प्लेन को ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ये है इंटीरियर और ये पीछे वाला है पोस्टीरियर। तो मीडियल या लेटरल को कट करने वाले फ्रंटल और कोरोनल, मीडियल और लेटरल, इंटीरियर और पोस्टीरियर को कट करने। यहाँ पर थोड़ा सा इससे गलती हुआ है, क्योंकि ये इसके लिए ये थोड़ा सा गलती हो गया इस इमेज में। तो इमेज में गलती है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये तो और देख लेंगे फिर उसके बाद समझ में आएगा। सेजेटल और लेटरल प्लेन जो है, लेफ्ट और राइट, मीडियल और लेटरल को काटने वाले को सेजेटल प्लेन बोलते हैं। फ्रंटल और कोरोनल प्लेन जो है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर को। तो अब यहाँ पर जो है ना सर्च ही कर लेते हैं, कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन जो है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोरोनल प्लेन्स। फ्रंटल प्लेन इज एनी वर्टिकल प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी इनटू वेंट्रल एंड डोर्सल बेली बैक सेक्शन। तो यहाँ पर कोरोनल प्लेन जो है, इमेज देखते हैं, कोरोनल प्लेन ही बस दिखना चाहिए, कोरोनल। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोरोनल प्लेन जो है, यहाँ पर देख सकते हैं वर्टिकल प्लेन्स, ये वर्टिकल प्लेन्स होता है। और फ्रॉम साइड टू साइड वो बात कर रहे हैं। ये डिवाइड द बॉडी पार्ट्स इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है कोरोनल प्लेन। और इससे रिलेटेड इमेज हम देखते हैं, और वो थोड़ा सा इमेज गलत था, और यहाँ पर कोरोनल प्लेन इसमें नहीं अच्छे से दिया गया। कोरोनल प्लेन वो गलत था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सेजेटल फ्रंटल या कोरोनल फ्रंटल, इंटीरियर और पोस्टीरियर को डिवाइड करते हुए इसमें भी शो कर रहा है। और भी देख लेते हैं कोरोनल, इंटीरियर और पोस्टीरियर। एक इमेज के चक्कर में पूरा गलत हो गया है कॉन्सेप्ट। सेजेटल प्लेन यहाँ पर लेटरल और साइड टू साइड जो है ये डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पर अब सेजेटल प्लेन के बारे में, सेजेटल प्लेन सर्च करते हैं, सेजेटल प्लेन। और सेजेटल प्लेन क्या बोल रहा है, द बॉडी राइट एंड लेफ्ट। हाँ, पहले भी बता चुके हैं, द एनाटॉमिकल सेजेटल। और इसको कट करते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं। According to Wikipedia, in anatomy, the sagittal plane, sedlar or longitudinal plane, is an anatomical plane which divides the body into right and left parts.
The plane may be in the center of the body and split it into two halves, mid-sagittal, or away from the midline and split it into unequal parts, parasagittal. तो इस पॉइंट से यहाँ पर ये पता चल गया कि जो है सैजिटल प्लेन जो है ये लेफ्ट और राइट पोर्शन को डिवाइड करता है, जिससे कि हम लोग यहाँ पर सैजिटल प्लेन की बात कर रहे हैं। सैजिटल प्लेन हाँ, ये देख सकते हैं इस इमेज में, ये लेफ्ट और राइट बोल सकते हैं। द डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स। चलो ये कंप्लीट होता है और लगभग जो है सभी पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। और एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर कोई लगभग हॉरिजेंटल प्लेन भी, वर्टिकल और सब सैजिटल भी हो गया, पोस्टीरियर। और यहाँ पर बात कर रहे थे कुछ ऐसे पॉइंट मिक्सचुअली सैजिटल, डोर्सल वेंट्रल भी हो गया। अब आगे जो भी होगा मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट इसमें छूटा है। डिफाइन स्केलेटन एंड मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं वो सर्च कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ द स्केलेटन एंड मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। Definition of the skeleton, the main functions of the skeleton. A usually rigid supportive or protective structure or framework of an ism, especially, the bony or more or less cartilaginous framework supporting the issues and protecting the internal organs of a vertebrate. तो यहाँ पर बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द स्केलेटन और इसके मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन ये बॉडी का ढांचा है या बॉडी जो है और जो सांचा बोल सकते हैं, जिसके सपोर्ट और इसका क्या क्या फंक्शन होता है, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है एक इरेक्ट पोजीशन में रहता है। ये सब देन है बोन का ही, स्केलेटन का ही। तो हम देखते हैं इसकी क्या क्या काम करता है। सबसे पहले तो लोकोमोशन सब जो है ये सब इसी का काम है। स्केलेटन एज यूजुअली रिजिड, ये जो है रिजिड होता है। सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, इसको सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑर्गेनिज, ये फ्रेमवर्क और ढांचा तैयार करता है बॉडी का, स्पेशली टू बोनी और मोर और लेस कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क सपोर्टिंग द सॉफ्ट टिश्यू। और सॉफ्ट टिश्यू में हम लोगों को कार्टिलेजिनस सब देखने को, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। बोन जो है हम लोगों के बॉडी में कहीं कहीं पर कार्टिलेजिनस, जहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू है कार्टिलेजिनस का, जैसे पेनिस सब हो गया, ये सब जो है कार्टिलेज का बना हुआ होता है। प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रा, और ये जो है इंटरनल ऑर्गन को बचाने के लिए जो है इसका काम होता है। लेकिन और भी इसमें जो है एग्जाम्पल होने चाहिए जिससे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम तो क्वेश्चन कर ही रखे हैं पहले से ही, और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। सर्च करते हैं। ओ द स्केलेटन। According to Cleveland Clinic, the skeletal system works as a support structure for your body. It gives the body its shape, allows movement, makes blood cells, provides protection for organs and stores minerals. The skeletal system is also called the musculoskeletal system. The major functions of the bones are body support, facilitation of movement, protection of internal organs, storage of minerals and fat, and hematopoiesis. तो ये सबसे पहले ये जो 5-7 पॉइंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो याद रखना है। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम वर्क एज एन सपोर्ट, ये कर ले, सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर योर आवर बॉडी, ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट गिव्स द बॉडी इट्स शेप, और शेप प्रोवाइड करता है। अलाउ मूवमेंट, ये मूवमेंट लोकोमोशन जो है स्केलेटन के ही कारण हो पाता है। मैक्स ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स बोन मेरो में ब्लड सेल्स सब बनता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करवाता है। ऑर्गन एंड स्टोर मिनरल्स, और कैल्शियम सब जो है ये कैल्शियम फास्फोरस सब स्टोर करता है। द स्केलेटल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम,
क्योंकि स्केलेटन को जोड़ने के लिए जो है मसल्स का ज़रूरत पड़ता है, इसी के लिए जो है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करता है। तो यहाँ पर जो है 5-6 पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। द मेजर फंक्शन ऑफ द बोन्स आर बॉडी सपोर्ट, फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट, तो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मूवमेंट में, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, स्टोरेज ऑफ मिनरल का स्टोर करता है, फैट भी स्टोर करता है, एंड हीमेटोपोएसिस और ब्लड सेल्स बनाता है, ब्लड का प्रोडक्शन करता है। 6 फंक्शन यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, तो लगभग सब में सेम ही है। सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, स्टोरेज ऑफ आयरन एंड इंडोक्राइन रेगुलेशन जो है बोन के थ्रू होता है। तो लगभग और भी देखते हैं, तो बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स। टुडे गोइंग टू लुक द 4 मेन ऑर्गन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स। तो ये जो है ना कुछ कंपोनेंट है, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स, ये इसके 4 पॉइंट हैं। लगभग ये कंप्लीट हो गया। तो एक बार यूट्यूब से भी देख लेते हैं। यूट्यूब से अगर देखने चाहें तो फर्स्ट और शॉर्ट व्यू में देखते हैं। एक ये आ गया वीडियो, एक ये 5 मिनट का और 13 मिनट का। बहुत इतना बड़ा वीडियो सही नहीं रहेगा। इंटीरियर, सुपीरियर, मीडियल, प्रोक्सिमल, सुपरफिशियल, हाँ लेटरल, एनाटॉमिकल पोजीशन, पोस्टीरियर, इंफीरियर, लेटरल, डिस्टल और डीप। तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फिजियोथेरेपी पोस्ट्रियन। टुडे आई डिस्कस वेरी। मैं इसको 2x में कर देता हूँ। आपको अगर स्लो दिखना है तो आप इसको नॉर्मल कर लीजिएगा, कम कर लीजिएगा। ये 2 है तो मैं 2 में x में दिख रहा हूँ, तो ये आपको 4x में दिखेगा। तो आप इसको 0.5 में कीजिएगा तो 1x में दिखेगा, तो आप समझ लीजिएगा। और इसको मैं 2x में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मेरे को पूरा 500 से 600 क्वेश्चन करना है। And topic of physiotherapy. So let's start. First is what is anatomical position. Anatomical position हमारी common है in physiotherapy because anatomical position important है in anatomy और anatomy एक subject है in physiotherapy branch. So आज हम बात करते हैं what is anatomical position and second one is what are the main anatomical position. So let's start. Anatomical position. Anatomical position is of important in anatomy because it is the position of reference for anatomical nomenclature. Anatomical terms such as anterior, posterior, medial, lateral, adduction, abduction and so on apply to the body when it is in the anatomical position. That means जो हमारी anatomical position है वो important है anatomy में because the position reference for anatomical nomenclature. It is term anterior, posterior, medial, lateral, adduction and abduction and it's in apply anatomical position. And in human standard anatomical position is with the body standing up straight and facing forward with arm by the side of the body and palm facing forward and the leg are straight and the feet are slightly apart from one another and turn outward slightly. That means इसमें बताया गया है जो हमारी anatomical position है वो किस तरीके से होगी, जिसमें कि हमारा फेस सामने की ओर होगा, जो हमारे हाथ that is arm है वो बॉडी के साइड में होंगे, हथेलियाँ that is palm आगे की ओर होंगी, पैर स्ट्रेट एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पर और थोड़ा बाहर निकले हुए, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. इट इज ऑल्सो एनाटॉमिकल पोजीशन, नॉट एनी बेंडिंग, लोअर लिम्ब इज स्ट्रेट, आर्म इज साइड ऑफ द बॉडी, नॉट एनी बेंडिंग, सो इट इज एनाटॉमिकल पोजीशन. फ्रेंड्स, नॉर्मली मूवमेंट एनाटॉमिकल पोजीशन में ही होते हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे. तो अभी स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द मेन एनाटॉमिकल पोजीशन? सो फर्स्ट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सेकंड वन इज सुपीरियर इंफीरियर, थर्ड इज मीडियल एंड लेटरल, फोर्थ इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. मेन तो हमारी 4 ही होती हैं, पर हम फिफ्थ की भी बात करते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप. सो लेट्स स्टार्ट. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर को हम वेंट्रल भी कहते हैं और पोस्टीरियर को हम डोर्सल भी कहते हैं. हाउएवर द टर्म एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर मेनली यूज्ड फॉर लोकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. एंड देन एंटीरियर जो होता है ना रिफर्स टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी एंड पोस्टीरियर रिफर्स टू द बैक ऑफ द बॉडी. जैसे एग्जांपल, द नोज इज एंटीरियर टू द ईयर एंड इक्वली वी कैन से दैट द ईयर आर पोस्टीरियर टू द नोज. एंड नेक्स्ट, हार्ट इज पोस्टीरियर टू द sternum because it lie behind it, and equally the sternum is anterior to the heart because it lie in front of it. Next, superior and inferior. Superior जैसे वर्ड से ही पता लगता है, सुपर मतलब हायर मतलब ऊपला हिस्सा, vertically close to the top of the head. Inferior that is lower, close to the bottom of the foot. जैसे एग्जांपल है, head is superior to the neck and next is umbilical is inferior to the sternum. umbilical को हम navel भी कहते हैं. तो next example, shoulder joint is superior to the elbow joint, lungs are superior to the liver and next is appendix is inferior to the transverse column. ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा मीडियल एंड लेटरल. मीडियल से पता लगता है मीडियल मतलब बीच वाला हिस्सा, मतलब टूवर्ड द मिड लाइन. वी कैन से रिलेटेड टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. जैसे कि मिड लाइन टू बॉटम, मिड लाइन टॉप टू बॉटम एंड डिवाइड योर बॉडी इनटू 2 इक्वल पार्ट. अगर हम टॉप से बॉटम तक अपनी बॉडी को डिवाइड कर दें लेफ्ट एंड राइट में, तो जो लेफ्ट एंड राइट होगा दैट इज मीन लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन. एग्जाम्पल, आई इज लेटरली टू द नोज, इक्वली वी कैन से नोज इज मीडियली टू आई. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. प्रॉक्सिमल ये टर्म है हमारी. प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल आर यूज इन स्ट्रक्चर, जो कि हमारी स्ट्रक्चर में यूज होती है, दैट आर कंसिडर टू हैव अ बिगिनिंग एंड एन एंड, सच एज
अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड ब्लड सप्लाई। द प्रोक्सिमल मींस होता है क्लोज टू इट ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ से हमारे किसी भी स्ट्रक्चर का ओरिजिन हुआ है उसके जस्ट लो होता है हमारा प्रोक्सिमल, एंड देन उसके अवे होता है हमारा डिस्टल। डिस्टल मीन फर्दर अवे फ्रॉम ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल में रिस्ट जॉइंट इज डिस्टल टू द एल्बो जॉइंट एंड द नी जॉइंट इज प्रोक्सिमल टू द एंकल जॉइंट। नेक्स्ट आता है सुपरफिशियल एंड डीप। वैसे तो हमारे 4 मेन ही होते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रोक्सिमल, डिस्टल एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर। नेक्स्ट ये भी हम पढ़ लेते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। Superficial is used to describe structure that are close to the exterior surface of the body. Exterior surface क्या होता है? What is exterior surface? Exterior surface means outside surface of any structure. मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का जो बाहरी हिस्सा होता है, मतलब आउटसाइड का जो पार्ट होता है उसे ही हम एक्सटीरियर सरफेस कहते हैं। एंड नेक्स्ट डीप होता है, रिफर्स टू स्ट्रक्चर क्लोज टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, जो हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी के जस्ट पास होता है। जैसे एग्जांपल है स्किन इज सुपरफिशियल टू बोन, मतलब अकॉर्डिंग टू बोन स्किन इज सुपरफिशियल एंड इक्वली बोन आर डीप टू स्किन। मतलब सुपरफिशियल और डीप का एक एग्जांपल हो सकता है स्किन सुपरफिशियल, बोन इज डीप। तो फ्रेंड्स ये होती है हमारी मेन एनाटॉमिकल पोजीशन वीडियो। तो यहाँ पर तो लगभग हो गया है। प्रोक्सिमल, लेटरल और मिड लाइन तो हमने बता दिया। मीडियल यहाँ पर लेटरल और प्रोक्सिमल, डिस्टल, लेफ्ट राइट, सुपेरियर इन्फेरियर, डिस्टल, प्रोक्सिमल, डिस्टल। और यहाँ पर ये जो था डीप था, तो यहाँ पर बोन, इसके अंदर जो है ये बोन रहता है। हैंड टू हैंड की बात करें तो ये सुपरफिशियल हो गया, और अगर बोन की बात करें तो ये डीप में है बोन। इस टाइप से बस ये एक ये टर्म था, और लगभग जो है हम लोगों ने बहुत हद तक कंप्लीट कर रखा है। अब जो है एनाटॉमिकल डायरेक्शन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन जो है कॉपी कर लिया है और उसको क्रोम पर भी सर्च कर लिया, तो थोड़ा सा देखते हैं यूट्यूब पर इसका क्या आंसर मिलता है। डेफिनेशन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटन, देखते हैं इसमें क्या है। कोई अच्छा सपोर्ट एंड कोई अगर पटेला द स्केलेटल सिस्टम मेटाकार्पल फिलेंसेस, ये सर्टिफिकेट और ये बॉन्ड्स द स्केलेटल सिस्टम। अगर बॉन्ड तो वैसे पढ़ना ही है, अगर यहाँ पर अच्छे से दिखाते तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, क्या बोलते हैं 3D में अगर मिल जाए हमें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें तो ये भी रहेगा और स्केलेटल सिस्टम, नोट्स स्केलेटल सिस्टम, हाँ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, उर्दू, हिंदी, म्यूजिक अगर मिल जाए 3D म्यूजिक, क्योंकि बहुत से द बॉन्ड सॉन्ग्स, ये तो ज़रूरी है भी है। आपको नोट्स स्केलेटल सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 1, ये भी फंक्शन ऑफ बॉन्ड। चलो यार ना फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, नो स्केलेटल सिस्टम, हमें यही देखना है। The skeleton has 206 bones in an adult. Babies have 270, which views for this result. ये बहुत अच्छा बात है, जब ये मेल में 206 होते हैं और बच्ची is divided into two main zones, which are called the करके देखना होगा। इसको करते हैं कम तो नहीं नॉर्मल। axial and appendicular bones in an adult. Babies have 270, which views for this result. The skeleton is divided 206 होता है मेल में, बेबी है 270, बट उससे तो बोला जाता है 300 रहता है। तो इसमें लगता है ये गलत है, या तो हम आगे पढ़ेंगे फिर उसके बाद समझ में आएगा कितना बाउंस होता है। into two main zones, which are called the axial and appendicular bones. जो भी इसके बीच में आता है मिड लाइन के पास, उसमें एक जीएल और कलर भी किया गया है, और ब्रेन का जो भी होता है और थोरेसिक कैविटी का जो भी है, उस थोरेसिक के थोरेक्स का जो भी है, चेस्ट पार्ट का सब जो है एक जीएल में आता है, और जो साइड सब में आता है फुट हैंड सब, ये सब अपेंडिकुलर है। फिर आगे चलते हैं। The axial skeleton is topped by the skull. Your brain is in the cranium, which acts as a whole. The mandible. जब ऊपर वाले की बात करते हैं तो ये क्रेनियम है, ये मेंडल। फिर आगे के बाद ये मेंडबल है, ये मेंडल नहीं है। Now we start from this. The jawbone is able to expand, which is useful for talking, as you can understand. The ossicles are small bones found inside your ear.
the malleus incus stapes, which all यहाँ पर 6 होते हैं, मिस याद करते हैं, मेलियस इनकस स्टिएपिस, मेलियस इनकस स्टिएपिस, ओसिकस में 3 बॉन होते हैं, इसके स्टेप भी बताएंगे। ये ईयर में सभी जो है, क्योंकि 2 ईयर होता है तो 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 6 बॉन्स होता है। फिर उसके बाद एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे जिसमें कितना कितना बॉन्स होता है। क्रेनियल I'll help you here. Sound waves are amplified by these 3 bones, and then move to the cochlea, which discerns the tones. The rib cage helps to protect the lungs and the heart, with 12 ribs on each. रिब्स जो है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब्स के नीचे जो है डायफ्राम होता है। Side the sternum in the front. स्टर्नम जो है फ्रंट और मीडियल लाइन में होता है और ये फ्लैट बोन है। Your vertebral column, made up of vertebrae, are stacked वर्टिब्रल कॉलम जो है वर्टिब्रा से बना होता है। up very neatly in a vertical array. The cervical vertebrae make up your neck. The spinal cord keeps your अब यहाँ पर बात करते हैं एटलस एक्सिस के बाद जो है सर्विकल। यहाँ पर ये 5 5 10 14 14 12 तो कितना हो गया 26 26 7 कितना हो गया 33 19 19 20 तो 33 flexes on deck. The ribs are supported by thoracic vertebrae. Lumbar ones are at the end of the spinal cord pathway. 5 sacral vertebrae are fused to form your sacrum, which holds your upper body and is found in your bum. Below it is the coccyx, or the tailbone. In humans, the coccyx has not really grown. The appendicular skeleton, 126 bones, in shoulders, arms, and legs, as we have here shown. Your scapula, also known as your shoulder blade, next to the clavicle or collarbone is laid. You have 3 क्लेविकल को हॉरिजॉन्टल बोन भी बोलते हैं। arm bones, 1 above and 2 below. Here they come together to meet at the elbow. The bones of the forearm are the ulna and the radius, the humerus in the upper arm, so don't you forget this. You have 54 bones in one hand and one wrist. Of carpals, metacarpals, and phalanges these consist. The proximal, intermediate, and distal phalanges. यहाँ पर क्लर से भी देख सकते हैं कार्पल जो होता है, कार्पल मेटाकार्पल। यहाँ पर पैलेंसेज जो है ये टोटल को बोलते हैं। प्रोक्सिमल इंटरमीडिएट और प्रोक्सिमल इंटरमीडिएट और डिस्टल। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है, इंटरमीडिएट नहीं पाया जाता है किसमें, ये है थंब के बगल में होता है रेडियस। थंब से पता कर सकते हैं रेडियस, और इसमें इंटरमीडिएट पाया नहीं जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Take up your fingers, which you can move with ease. Remember that your hands are where you find the carpals, and the feet are where you will find all your tarsals. The hip bone can be divided into 3. The ilium, ischium, and pubis, as you can see. हिप बोन जो है इलियम इसम प्यूबिस में डिवाइडेड होता है। हिप बोन इलियम इसम प्यूबिस में The bones in your leg, well, there are 4. The patella is your kneecap, and then there are 3 more. The tibia and fibula are found below the knee, and the femurs found above it, as we can all agree. There are 52 bones in your ankles and your feet. Once you know the hand bones, these will be a treat. There are the tarsals, metatarsals, and phalanges. Remember that they are proximal, intermediate, and distal.
If you enjoyed this video, like and subscribe. You can also support me by following the link to my Patreon. यहाँ से जो है पूरा क्लियर नहीं होता है, तो ऐसा कोई वीडियो देखेंगे जिससे कि एक जो है क्वेश्चन से हमारा आंसर मिले, उसके बाद इसको करते हैं बैक और ये थोड़ा सा 2 मिनट में देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ स्केलेटल में आप जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। देयर आर 7 फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहला जो फंक्शन है प्रोटेक्शन। स्केलेटल सिस्टम में आपका मेजरली आप ये बोल सकते हैं कि बोन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स, ये 3 चीजें मिलकर जो है आपका स्केलेटल बनता है। तो इसके फंक्शन भी उसी के आसपास है। पहला है प्रोटेक्शन, जैसा ये स्कल में बना हुआ है, तो क्रेनियम प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ब्रेन। तो ये जो क्रेनियम रीजन है ना, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन और नर्वस टिश्यू। तो पहला सा फंक्शन है। सेकंड फंक्शन है मूवमेंट। द वर्टिब्रा अलाउ अस टू बेंड, स्ट्रेच, रोटेट आवर बॉडी, ठीक है ना। तो ये जैसे आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स है ये आपको बेंड होने के लिए अलाउ करती है, स्ट्रेच, रोटेट, ये सब। थर्ड ब्लड प्रोडक्शन, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, जो आरबीसी होता है, वो आपका बोन मैरो में बनता है। मतलब बोन मैरो, इस बोन के बीच में रेड बोन मैरो होता है। इस रेड बोन मैरो में जो है आपका क्या बनता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये आपकी रिब्स और लिम्फ की बोन, इसका प्रोडक्शन होता है। वो जो है सपोर्ट, तो यहाँ पे लिखा है बोन्स ऑफ द लेग सपोर्ट द बॉडी, हिप सपोर्ट विद से। तो यहाँ पे आपका जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा जो है ये आपकी यहाँ पे जो वर्टिब्रा है, ठीक है ना, इसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। ये सपोर्ट दी है प्रोटेक्शन, जैसे आपकी रिब केज जो है ये इसके अंदर रहने वाले हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। मिनरल स्टोरेज, जैसे ये बोन्स जो है दे आर आल्सो स्टोरिंग द मिनरल्स सच एज कैल्शियम। तो यहाँ पे अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर प्रोटेक्शन में है, तो प्रोटेक्शन में कहाँ पर होता है, क्रेनियम प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन की बात करें तो अगर अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं, तो क्रेनियम जो है सपोर्ट करता है अंदर में जो सेरेब्रम सब जो है, सेरिबेलम और जो भी स्मूथ पार्ट है, उस सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्रेनियम जिसको बोलते हैं बोन से बना होता है। मूवमेंट के लिए जो है वर्टिब्रा अलाउस टू बेंड, स्टैंड एंड रोटेट आवर बॉडी, जो है वर्टिब्रा हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। ब्लड प्रोडक्शन, जहाँ पर कि हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी जो है फॉर्म होता है रिब्स एंड लिम्स बोन। इन द रिब्स एंड लिम्स बोन में जो है ब्लड प्रोडक्शन होता है सपोर्ट के लिए। द बोन्स ऑफ द लेग सपोर्ट द बॉडी, तो सपोर्ट के लिए जो है बोन्स लेग्स और सपोर्ट करता है बॉडी को। 5 नंबर जो है फिर भी सपोर्ट है, तो यहाँ पर सपोर्ट करता है वर्टिब्रा सपोर्ट द हेड। वर्टिब्रा जो है सपोर्ट करता है हेड को। प्रोटेक्शन किया गया, प्रोटेक्शन की बात करें तो रिब केज प्रोटेक्ट द डेलिकेट हार्ट एंड लंग्स। प्रोटेक्शन की बात करें तो रिब केज जो है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज बना होता है। मिनरल्स स्टोरेज के लिए जो है द बोन्स एक्ट एज द रिजर्वायर स्टोरेज वाइटल मिनरल्स सच एज कैल्शियम, फास्फोरस सब यहाँ पर जो है स्टोर किया जाता है बोन में। तो बोन में यहाँ पर बोन कार्टिलेज और लिगामेंट होता है। तो और यही एक पॉइंट है, टेंडन सब भी है पब्लिक बोन, बेली बोन टू जॉइंट को मसल्स का एक ट्रिक और है बोन टू बोन, बबली बोन टू बोन। अगर जॉइंट हो तो कार्टिलेज का जॉइंट और लिगामेंट बोलते हैं, और बोन मसल्स हो तो उसको टेंडन बोलते हैं। तो ये भी एक पार्ट होता है जो कि हेल्प करता है बॉडी में। तो ठीक है, यहाँ से हम निकलते हैं। अगर इससे अच्छा कोई वीडियो मिलेगा तो फिर देखते हैं। जहाँ से हम निकल गए ओस्टियम रोमन स्केलेटल सिस्टम, और इससे अच्छा कोई हमको दिख तो नहीं। फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सपोर्ट, ये सब हो गया। ये हमको मानव शरीर का संपूर्ण, ये हिंदी में है द मसल सॉन्ग्स। मसल सॉन्ग्स भी सुन ले तो अच्छा ही रहेगा। कौन सा अच्छा होगा भैया, क्लास 5 का हम पढ़ेंगे का टार्सल मेटाकार्पल मेटाकार्पल पैलेंजेस। अगर कोई अच्छा वीडियो मिलता है बायोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम ना यार, आर्टिफिशियल आई वेयरिंग एंड रिमूवल बाय द मेंस पेशेंट। तो हम तो जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहते थे फूट बोन्स एनाटॉमी, तो ये भी हो गया है। एक ये Hey everyone, in this anatomy lesson I'm going to cover the bones of the foot, which make up part of the appendicular skeleton. Now there are 26 bones in each foot, which can be broken down this way. You have 7 tarsals, 5 metatarsals, and 14 phalanges. Now when you combine the bones from both feet, you have a total of 52 bones out of the 206 bones in the average adult. अगर बात करें पैर में तो उसमें 52 बोन्स होता है, दोनों में 26 होते हैं। टार्सल मेटाटार्सल फेलेंजियन में 3 होता है, प्रोक्सिमल इंटरमीडिएट और डिस्टल, और ये होता है 26 कैसे देखते हैं तो एक देखते हैं 8
5 5 और 4 5 तो 4 पंचे 15 19 और 27 होना चाहिए। देखते हैं कहाँ पर क्या गलती किया है मैंने। skeleton. So 25% of the bones in your body are in your feet. Let's start with the toes and work our way back. The bones that make up your toes are called phalanges, just like the finger bones, and the singular form of that, by the way, is phalanx. There are 3 phalanges for each toe, except for the big toe, also called the great toe or the hallux, which has only 2 phalanges. Now your toes, which are also called digits, are numbered 1 through 5, just like your fingers are numbered 1 through 5. The great toe is digit number 1, just like your thumb was digit number 1 on the hand. And it only has 2 phalanges, a distal and a proximal phalanx. And then the long toe will be digit number 2, the middle toe digit number 3, the ring toe digit number 4, and the pinky toe is digit number 5. As with the fingers, the phalanges of the foot are named after directional terms, and the distal phalanx is always going to be furthest away from the ankle. And I have a video on directional terms if you need to refresh on that, but I like to remember this phrase. If you make a यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है, यहाँ से हम लोग जो है जब भी स्टडी करेंगे तो प्रोक्सिमल पार्ट बॉडी की ओर होगा, नहीं तो हमें ऐसा सोचे कि इधर की ओर प्रोक्सिमल, तो गलत बात है। हम जब भी पढ़ते हैं तो बॉडी जैसे भी होता है, तो यहाँ पर आप भी डिनोट कर सकते हैं प्रोक्सिमल इधर की ओर होता है, फिर उसके बाद मीडियल और डिस्टल। मीडियल को इंटरमीडिएट भी बोलते हैं और फेलेंजेज का 3 पार्ट है, और जो है इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये तो है सबसे छोटा उंगली, और फर्स्ट नंबर जो है उसमें मिडल नहीं होता है, इंटरमीडिएट फ्लेंजेज नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं ये क्या बोलता है। with your hand, remember that the pistol is distal to the upper arm, and that helps me remember distal versus proximal. The middle phalanx is going to be called middle, so that's easy to remember. And then the phalanx closest to the metatarsal is going to be the proximal phalanx. Now let's talk about the metatarsus of the foot, which consists of the 5 metatarsal bones. The prefix meta means beyond or after, and these bones are beyond the tarsals, which I'll cover in just a moment. And again, these bones are numbered 1 through 5, so they're really easy to remember. Metatarsal number 1 is going to be on the side of your big toe. Metatarsal number 5 is going to be on the side of your pinky toe. And people sometimes confuse the carpals and metacarpals of the hand with the tarsals and metatarsals of the foot, so just remember the carpals will help you steer your car, and your tarsals are near your toes. Finally, we have the tarsal bones, which are those 7 bones that make up the tarsus of the foot, in the posterior region. And if you ever watch sports, you might have heard of the North Carolina Tar Heels, and that helps me remember that the tarsals are those bones that make up the heel region of the foot, the posterior part of the foot bones. First, we have the talus, which is an ankle bone at the superior portion of the posterior part of the tarsus, and it gets its name from a Latin word that literally means ankle. It articulates or forms a joint with the tibia and fibula bones of the lower leg, as well as other tarsal bones. In fact, you'll notice a little ball-like bony part on each side of your ankle. That's going to be the medial and lateral malleolus, which is formed by the tibia and fibula bones. Now, inferior or just under that talus bone is the calcaneus bone, which forms the heel of the foot, and this is the largest tarsal bone in your foot. Next, you have the navicular bone, which gets its name from a Latin word that means little ship, and this bone is always located on the same side as your big toe, so always remember that the navicular is on the big toe side. Next, we have these 3 little bones called cuneiform bones that start on the medial or big toe side of the foot and work their way over in a row of 3, and they get their name from a Latin word that means wedge-shaped. And the good thing for you as an anatomy student is that, all 3 of them are named something cuneiform, so if you can just remember your directional terms, which is the first word, you'll remember this bone. So first we have the medial cuneiform, and again, medial means toward the midline of the body, so it's going to be, again, right where your big toe is on that side of the foot. Then you have the intermediate, which means middle, and that's where that cuneiform is going to be located. And then you have the lateral cuneiform, and lateral means away from the midline or toward the side of the body, which is where that is going to be located. On the lateral side of the foot, we have the cuboid bone. As the name suggests, it has a cube shape to it. And here's a quick mnemonic to help you remember the 7 bones of the tarsus. Tall camels never consume cubes. And to make this easier, I reduce. अब यहाँ पर ये याद करने वाली बात है, और इसमें इसने ट्रिक भी बताया है। हिंदी में देखेंगे अगर कोई ट्रिक अच्छा होता है तो वो अच्छा रहेगा, फिर भी मैं इसको ये तो आप बात जानते हैं कि यहाँ पर इधर से ये सबसे पहले ये याद करना है। तो यूनिफॉर्म, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल कंज्यूम टार्सल बोन, निमोनिक, टॉल टेलस, टॉल कैमल नेवर कंज्यूम क्यूब्स। जो है टॉल कैमल लंबे ऊँट जो होते हैं वो कभी भी क्यूब्स जो है कंज्यूम नहीं करता है। तो कंज्यूम में यानी कि यूनिफॉर्म 3 तरह के होंगे, और सबसे पहले क्या होगा यूनिफॉर्म, फिर मीडियल, फिर इंटरमीडिएट, और क्यूब्स जो है क्यूबाइड। सबसे पहले कैल्केनियस, टेलस, टॉल कैमल, फिर उसके बाद नेवर कंज्यूम क्यूबॉइड। तो टॉल कैमल, पहले टॉल कैमल नेवर कंज्यूम क्यूब्स, टॉल कैमल नेवर कंज्यूम क्यूब्स। तो यहाँ पर क्या है टेलस, और ये क्या है कैल्केनियस। नेविक्यूलर मीन्स नया, याद कर सकते हैं, नया इधर की ओर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कंज्यूम तो 3 है, ये सबसे लेटरल पोजीशन पर है, फिर इंटरमीडिएट, फिर ये लेटरल, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल। ये मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल। इसके बाद ये क्यूबॉइड, क्यूब्स।
फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। Uniform bones down to just one mnemonic word because lateral, intermediate, and medial. If you know directional terms by now, you should be able to identify which is which on that. Okay, so that wraps up this video over the bones of the foot. And if you'd like, you can take a free quiz on our website to test your knowledge on this topic. In addition, we have a whole playlist of anatomy videos that you might want to check out if you're studying for anatomy and physiology. Thank you so much for watching, and please subscribe. Hey everyone. अब यहाँ पर ही देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मीडियल जो है इधर की ओर है। फर्स्ट मीडियल है, सेकेंड इंटरमीडिएट है और थर्ड लेटरल है। फिर इसके बाद टॉल कैमल नेवर कंज्यूम क्यूबस। टॉल जो है लंबा ऊँट जो है वो कभी भी कंज्यूम नहीं करता है क्यूब। ऐसा होता है क्यूब नहीं खाता है, प्लास्टिक का बना था। क्यों प्लास्टिक का बना होता है? तो फिर यहाँ पर टेलस कैल्केनियस नेविकुलर कंज्यूम में पहले आता है लेटरल, इंटरमीडिएट, अलाइव और मीडियल। तो लिम वैसे लिम से याद करना, लेटरल, इंटरमीडिएट, मीडियल और क्यूब से क्यूबॉइड। उसके बाद तो टार्सल, मेटाटार्सल। टार्सल में तो वही है 7 बोन। फिर उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेज में 3, प्रोक्सिमल, मिडल और डिस्टल। प्रोक्सिमल सबसे पहले, प्रोक्सिमल इधर से हम लोग स्टडी करेंगे। प्रोक्सिमल, डिस्टल, इंटरमीडिएट और डिस्टल। प्रोक्सिमल, इंटरमीडिएट, डिस्टल और इंटरमीडिएट नहीं पाया जाता है फर्स्ट यहाँ पर, जिसमें 3 देखने को मिल रहा है, ये है अंगूठा। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। और बहुत हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बोन्स के बारे में अब स्टडी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बहुत स्टडी कर लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन का क्लासिफिकेशन भी तो ज़रूरी है। करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। कॉपी किया और वर्ड पर जाते हैं। वर्ड पर हमें लाइन टू लाइन स्टडी करके बताएंगा। चलो पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे। अबे क्या हुआ? Skeleton, a usually rigid supportive or protective structure or framework of organism, especially, the bony or more or less cartilaginous framework supporting soft tissues and protecting the internal organs of a vertebrate. 3. Classification of bones. Development of the bones. Long bones, as their name suggests, are considerably longer than they are wide. A long bore a shaft plus 2 ends which are often expanded. All limb bones except the patella, kneecage, the wrist and ankle bones are long bones. Notice that these bones are named for their elor shape, not their overall size. The 3 bones in each of your fingers are long bones, even t they are small. Short bones are roughly cube-shaped. The bones of the wrist and ankle are examples. Sesamoid bones are a special type of short that form in a tendon, for example, the patella. They vary in size and number in individuals. Some sesamoid bones act to alter the direction of pull of a tendon. The function of others is not known. Flat bones are thin, flattened, and usually a bit curved. The sternum, breastbone, scapulae, shoulder blades, ribs, and most skull bones are flat bones. Irregular bones have complicated shapes that fit none of the preceding classes. Examples include the vertebrae and the hip bones. 4. Peculiar. अब जो है थर्ड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो है इसको हिंदी में बाद में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग इसके बारे में इसको कॉपी कर लें, फिर फ्रॉम पर सर्च करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और ये डेवलपमेंट ऑफ बोन, क्लासिफिकेशन और 4 टाइप्स ऑफ बोन होता है। कौन कौन से यहाँ पर दिया है? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन्स। इट हैज़ लॉन्ग थिन शेप, ठीक हैज़ अ स्क्वायर क्यूब शेप जो शॉर्ट बोन में होता है। फ्लैट बोन हैज़ फ्लैटेड एंड ब्रॉड सरफेस। इरेगुलर बोन्स हैज़ अ शेप दैट डज नॉट कन्फर्म टू द अबव 3 टाइप्स, ठीक है। इरेगुलर बोन्स तो इससे अच्छे से नहीं होगा, तो हम इमेज की ओर जाते हैं। इमेज पर जाते हैं, यहाँ पर समझ में आएगा कि हमें कैसे क्या करना है। तो इसके लिए ये इमेज बहुत अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ पर देखते हैं। चलो शॉर्ट बोन जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? हैंड,
हैंड के में देखने को मिल रहा है, हैंड के और पाल्म रीजन में लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट और मीडियल। तो लेटरल जो है ये लेटरल हमें क्या दर्शाता है, लेटरल, मीडियल और मीडियल जो है इधर जो है हमारा टो है, अंगूठा है, और स्मॉल ये फर्स्ट वन इसी से देखने को। यहाँ पर मीडियल MI मिल से याद करना है, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म। और यहाँ पर तो याद है ये टॉल कैमल, तो टेलस ही इधर हो गया, कैमल, टॉल कैमल, नेवर नेविकुलर, नेवर कंज्यूम क्यूबाइड, लास्ट वाले में ये क्यूबाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट और ऐसे 2-4 बार करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा आपको भी और मेरे को भी। शॉर्ट वन में यहाँ पर हम लोगों को जो है 3 बोन दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर है अपेंडिकुलर बोन का फुट पार्ट का 3 बोन्स है, जो कि सबसे शॉर्ट बोन्स है, ठीक है। फिर उसके बाद इरेगुलर बोन्स, वर्टिब्रा। इरेगुलर बोन्स जो है वर्टिब्रा में देखा जाता है, वर्टिब्रा के बारे में भी बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। अभी जो सबसे इरेगुलर बोन यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी रेगुलर नहीं है, और इस सब पार्ट के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पर फ्लैट बोन जो है हमें जो स्टर्नम देखने को मिलता है, स्टर्नम में फ्लैट बोन है। और लॉन्ग बोन जो है फीमर, लॉन्ग बोन जो है फीमर, ये याद रखना है। फीमर कहाँ पर होता है, हैंड में जो है हमें फीमर जो है हमें टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस जो है हैंड में, और फीमर जो है हमें टांग में देखने को मिलता है, फुट में या फुट में हमें को देखने को मिलता है फीमर। सिस्माइड बोन, लॉन्ग बोन, सिस्माइड बोन को बोलते हैं पटेला। तो हमें इस हिसाब से फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन और सिस्माइड और इरेगुलर बोन, तो हमें मिल गया 1, 2, 3, 4 और 5 तरह का बोन मिल गया, ठीक है। दूसरा अगर कोई और अच्छा एग्जांपल हमें मिले तो वो भी देखना पसंद करेंगे। हाँ, पटेला, सिस्माइड बोन पटेला, वर्टिब्रा में इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन स्टर्नम, और लॉन्ग बोन फीमर, शॉर्ट बोन क्यूनिफॉर्म का 3 जो है के 3 बोन है, मेलियस, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन। तो ये कंप्लीट हुआ। अब सब एक ही जैसा इमेज है, अब ये कंप्लीट कर लिया है तो अब इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बताया था वो अब पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, डेवलपमेंट ऑफ बोन का यहाँ पर जो बात करेंगे क्लासिफिकेशन और बोन डेवलपमेंट ऑफ बोन के बारे में। लॉन्ग बोन्स सबसे पहले हम बात करेंगे। लॉन्ग बोन्स हम लोगों ने पहले देख रखा है, कहाँ पर है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जो है हमें फुट के पार्ट में, फीमर जो है वो सबसे बड़ा लॉन्ग बोन है। देयर नेम सजेस्ट आर कंसिटिवली लॉन्गर देन दे आर वाइड, ये वाइड और बड़ा होता है, और लॉन्गर भी बोला जाता है, लंबा भी होता है, और ब्रॉडर भी होता है, वाइड। लंबा जो है जो साफ्ट, उसके पास जो एक साफ्ट होता है प्लस 2 एंड्स, उसके बाद 2 एंड्स होता है विच आर ऑफन एक्सपेंडेड, जो कि एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ होता है। और लिम्ब बोन्स, जितने भी लिम्ब बोन्स एक्सेप्ट द पटेला, पटेला को छोड़ करके जो घुटनों में होता है पटेला, अभी तो हम लोगों ने पहले देखा। नी कैप एंड द रिस्ट एंड एंकल बोन्स आर लॉन्ग बोन्स, जितने भी रिस्ट और एंकल बोन्स को छोड़ करके, और लिम्ब बोन्स एक्सेप्ट द पटेला, पटेला को लिम्ब बोन जो है वो सब जो है मतलब और लिम्ब बोन्स एक्सेप्ट द पटेला, पटेला को छोड़ करके, एंड द रिस्ट एंड एंकल बोन्स, रिस्ट हाथ और एंकल बोन्स छोड़ करके सभी जो लॉन्ग बोन की श्रेणी में आते हैं। नोटिस दैट दीज बोन्स आर नेम्ड फॉर देयर इलोंगेटेड शेप, और ये जो है ये लंबा इलोंगेटेड शेप के कारण इसे लॉन्ग बोन दिया जाता है, नॉट देयर ओवरऑल साइज। और ये साइज के मेटर पर जो है इसे हम लॉन्ग बोन नहीं बोलते हैं, इसका इलोंगेटेड शेप के कारण इसको लॉन्ग बोन बोलते हैं। द 3 बोन्स इन ईच ऑफ योर फिंगर्स, और 3 बोन जो है आपके फिंगर में है, आर लॉन्ग बोन्स इवन तो दे आर स्मॉल, जबकि वो छोटे हैं, लेकिन जो है इलोंगेट शेप के कारण उसे लॉन्ग बोन बोलते हैं, और जबकि वो छोटा है। शॉर्टर बोन्स आर रफली क्यूब शेप, और शॉर्ट बोन जो है वो लगभग जो है क्यूब के शेप का होता है। द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल आर एग्जाम्पल, द बोन्स ऑफ रिस्ट और जो है एंड एंकल्स एग्जाम्पल है किसका है, शॉर्ट बोन्स का। सिस्माइड बोन्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ शॉर्ट बोन,
ये जो है सेसमाइड बोन भी जो है ये शॉर्ट बोन्स का ही एक टाइप है, और जो कि हमें देखने को मिलता है पटेला, दैट फॉर्म इन अ टेंडन, और वो फॉर्म करता है टेंडन, बोन टू बोन कनेक्शन को टेंडन बोलते हैं, बोन टू मसल्स कनेक्शन को लिगामेंट बोलता है। तो इसी में टेंडन एक आता है, तो वो इसका एग्जांपल है पटेला, जो कि शॉर्ट बोन है, शॉर्ट बोन का ही एक टाइप है सेसमॉइड बोन, उसी का एक एग्जांपल है पटेला। दे वेरी इन साइज एंड नंबर इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और ये जो है साइज और नंबर के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सम सेसमॉइड बोन्स एक्ट टू अल्टर द डायरेक्शन ऑफ पूल ऑफ ए टेंडन, सेसमॉइड बोन जो है वो अल्टर द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन को अल्टर करता है ऑफ पूल ऑफ ए टेंडन, जब टेंडन का पूल खींचते हैं तो। द फंक्शन ऑफ अदर इज नॉट नोन, और कुछ का जो है फंक्शन जो है आइडेंटिफाइड नहीं। फ्लैट बोन्स आर थिन, जो फ्लैट बोन्स होता है जो स्टर्नम में हमें देखने को मिलता है वो थिन होता है, पतला होता है, बट वो फ्लैटेंड होता है, एंड यूजुअली अ बीट कर्व, और उसमें जो है एक कर्व होता है। द स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड्स, रिब्स एंड मोस्ट स्कल बोन्स आर फ्लैट बोन। स्टर्नम के साथ साथ ब्रेस्ट बोन, स्कैपुला जो पीछे की ओर होता है, शोल्डर ब्लेड जिसको बोलते हैं, रिब्स, रिब केज में जितने भी बोन्स होता है, एंड मोस्ट स्कल बोन्स आर फ्लैट बोन, जो स्कल में जो होता है बोन वो सबसे फ्लैट बोन्स के अंतर्गत आते हैं। Irregular bones have complicated shape that fit none of the preceding classes. Irregular bone जो है उसका जो है कोई मतलब स्ट्रक्चर सही नहीं होता है, irregular शेप होता है, तो वो इसकी एग्जांपल्स इंक्लूड द वर्टिब्रा एंड द हिप बोन्स। हिप बोन में जो मेरियस कान में तो 3 होता है, और इस्कियम और 3 बोन जो है हिप बोन में भी होता है, वो भूल रहे हैं, थोड़ा सा आगे देखेंगे हिप बोन का। इस्कियम पहले भी इस्कियम प्यूबिस और एक क्या होता है बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बोन तो ये हो गया, और जो वर्टिब्रल कॉलम में जो भी बोन होता है वर्टिब्रा में सब जो है इरेगुलर बोन का एग्जांपल है। पेक्यूलरिटीज और सर्विकल थोरैक्स एंड लिम्बर वर्टिब्रा। अब जो स्पेशल फीचर जो है सर्विकल थोरैक्स एंड लिम्बर वर्टिब्रा के बारे में बात करेंगे, आखिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो सब के बारे में। अब यूट्यूब से जो ये क्वेश्चन कॉपी किया है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ना, यूट्यूब ने देखते हैं कैसा क्या दिया है। अगर एक अच्छा वीडियो मिल जाए इससे रिलेटेड तो बल्ले बल्ले। शॉर्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट प्लस लॉन्ग शॉर्ट एंड फ्लैट बोन, ज़्यादा लंबा हो गया, छोटा 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 छोटा, और एनाटॉमिकल। यार इतना बड़ा वीडियो बना कर रखा, एक तो मैं भी बड़ा ही वीडियो बना रहा, छोटा वन छोटा छोटा। क्रेनियल बोन्स, सिरसेरा फेशियल ईयर बोन्स, कांच, हाइड वन, हाँ ये तो हाइड वन। ट्रिक फॉर बोन्स, सेलो ट्रिक टाइप्स ऑफ बोन्स, ये अगर कर लेते हैं तो चाहिए ट्रिक्स टू लर्न बोन्स। और एक्सियल एपेंडिकुलर 18 मिनट ट्रिक्स फॉर बोन। पाकिस्तान प्लेटाइन नेजल, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले। चलो ये देख लेते हैं। फेशियल बोन्स 14 होता है, और रिचेस्ट बोन मिनिमोनिक, ये भी ज़रूरी है। फेशियल बोन ये सब कर रहे तो चलो फर्स्ट वाली। फेशियल बोन्स मतलब चेहरे की हड्डियां याद करने के लिए आप याद कीजिए, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। क्या? मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। मेरी के एम से मैंडिविल, वाली के वी से वोमर, मुझे में एम से मैक्सिला, पाकिस्तान के पी से पैलेटाइन, नहीं में एन से नेजल बोन, आई से इंफीरियर टर्वाइनल्स, ले में एल से लेक्राइमल, और जाएगी में जेड से जाइगोमेटिक। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है कि फेशियल बोन्स जो होती हैं, आपको पता है कि 14 या 14 बोन्स जो होती हैं वो फेशियल बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, सारी की सारी बोन्स आप देख रहे हैं 2-2 हैं, 2-2 बोन्स हैं सारी की सारी, सिर्फ मेरी वाली को छोड़कर। मेरी वाली मतलब मैंडिविल और बोमर को छोड़। फेशियल बोन्स मतलब चेहरे की। और फेशियल बोन में क्या है, तो यहाँ पर सब अच्छा बता दिया गया कि यहाँ पर जो है 2 बोन्स है, उसको छोड़ करके जो है मैंडिबल और मैक्सिला को छोड़ करके यहाँ से तो ये निकल लिया।
मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। क्यों नहीं लेकर जाएगी? कि अगर मैं ये बात करूं कि मैं आउट ऑफ द कंट्री रह रहा हूं, वो एक कहानी बनाते हैं। आउट ऑफ द कंट्री रह रहा हूं, मैं हूँ आउट ऑफ कंट्री का। पाकिस्तान और इंडिया जो है वैसे फ्रेंड बताया जाता है, और मैं ये कंज्यूम कर सकता हूँ कि दूसरे कंट्री में दूसरी कंट्री की गर्ल्स को से प्यार करता हूँ। वो जो है इंडिया पाकिस्तान दोनों से बिलोंग करती है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं लेकर जाएगी क्योंकि अभी वो सेफ कंट्री नहीं है। इसलिए जो है अब ये याद रह जाएगा, वो इंडिया लेकर जाएगी। ठीक है। मेरी वाली मैंडिबल, वॉमर, मैक्सिला, प्लेटाइन, नेजल, इंफेरियर नेजल कोंका भी बोलते हैं, इंफेरियर टर्बिनेलिस और लेक्राइमल जैगमेटिक। ये दो बोन इंफेरियर टर्बिनेलिस, ये थोड़ा सा इंफेरियर टर्बिनेलिस, हाँ, और इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा। और फेशियल बोन 14 है, ये जो है ना अच्छे से मेरे को इंफेरियर टर्बिनेलिस, इंफेरियर टर्बिनेलिस, how terminals are the largest and located overlooking the nose. They are also the most likely to become enlarged. This condition is called inferior turbinate hypertrophy. Turbinate becomes enlarged when the mucosa gets plumbed due to rhinitis and chronic sinus image. Inferior terminals, inferior nasal concha, superior terminals, medial, superior medial, और हाँ, तो ये इमेज हमें शो कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पर सुपेरियर टर्मिनेट, सुपेरियर टर्मिनेट, सुपेरियर ये सुपेरियर है, ये मीडियल है, और ये इन्फीरियर है। 3 तरह के बॉन्ड देखने को मिलता है, और इसमें भी इन्फ्लाम्ड इन्फीरियर टर्मिनल, ये 2 हो गया। और इसमें बहुत से बॉन्ड होता है, लेकिन जो भी मोस्टली होता है उस सब के बारे में स्टडी करेंगे। और ये यहाँ पे साइनस और कुछ साइनस के कारण जो है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। बहुत से साइनस सब होता है, एलर्जिक होता है, सुपीरियर। तो यहाँ पर 3 तरह के सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर। टर्बिनेट याद रखना, और ये सुपीरियर ऊपर हो गई, मीडियल और इंफीरियर 3 कौन हो गया। फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं, अब देखते हैं और भी निमोनिक अगर आप पास में तो ये। The easiest way to learn the carpal bones is by this mnemonic. She looks too pretty. Try to catch her. She, scaphoid. Look, lunate. 2, triquetrum. Pretty, pisiform. Tri, trapezium. 2, trapezoid. Catch, capitate. Her, hamate. The easiest way to learn the carpal bones is by this mnemonic. She looks too pretty. Try to catch her. She looks too pretty. Try to catch her. वो बहुत सुंदर दिख रही है, और पता करो कि ट्राई करो कि उसे पकड़ लो। ठीक है। सब ये याद रखना, she looks too pretty. Try to catch her. She, scaphoid. Look, lunate. 2, triquetrum. Pretty, pisiform. Tri, trapezium. 2, trapezoid. Catch, capitate. Her, hamate. अब यहाँ से शुरू करते। ओह सो सॉरी यार, ये क्या हो गया। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम, अगर इस बार क्या हो। Her, her, hamate. That's good. अब हम यहाँ पर अपना करेंगे फोटोज में जाते हैं, और उसको करते हैं कहाँ पर स्क्रीनशॉट है हमारे यहाँ पर, यहाँ से हमने निकाला। यहाँ पर सी मीन्स ये पहले सी, इसके बाद लुक्स टू प्रीटी, सी लुक्स टू प्रीटी, सी लुक्स टू प्रीटी, सी लुक्स टू
प्रीटी, सी लुक्स टू प्रीटी, ये 4 बॉन्ड तो हो गया। ट्राई टू कैच हर, ट्राई टू कैच हर, ट्राई टू कैच हर, सी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, स्केफाइड, सी लुक्स लूनेट, फ्राइकेट्रम, पीसी फॉर ट्राई, ट्रेपेशियम, ट्रेपेजॉइड, केपेट, हेमेट। तो सी लुक्स, सी में स्केफाइड, अल से लूनेट, स्केफाइड लूनेट, स्केफाइड लूनेट, ट्राइकेट्रम, 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 पीसीफॉर्म, 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 ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, दोनों में ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड का कैपिटेट और हेमेट। सी स्केफाइड लुक्स लूनेट, टू ट्राइकेट्रम, ट्राइकेट्रम प्रीटी, पीसीफॉर्म, ट्राई, ट्रेपेजियम, टू ट्रेपेजॉइड, केच, कैपिटेट, हर, हेमेट। तो अब एक बार फिर से याद करेंगे। सी में स्केफाइड लुक्स लूनेट, सी लुक्स टू प्रीटी, ट्राइकेट्रम और पीसीफॉर्म, और फिर इसके बाद ट्राई टू कैच हर, ट्राई, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। ये हो गया हैंड का। फिर उसके बाद मेटाटार्सल, और यहाँ पर तो आ गए फ्लेंजेज। फ्लेंजेज में सबसे पहले अब यहाँ से देखते हैं कोई और यूट्यूब फेशियल हो गया, फेशियल और भी कोई अगर हो, फेशियल बोन्स इन 1 मिनट, फेशियल बोन और नो स्कल बोन, हाँ, ये निमोनिक्स, शॉर्ट ह्यूमन स्केलेटल बोन्स। वाओ दैट्स गुड, ये भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हमें इसमें तो सब बता ही रखा है, ये एक कर लेते हैं। फिर उसके बाद और फेशियल बोन ये हो गया, और चलो ये वाली अब कर लेते हैं। You don't want to miss this mnemonic for the skull bones. We are taking the steps for this one. The 8 bones of the neurocranium are the 2 temporal bones here in purple, 2 parietal bones in green, and a single occipital bone in orange, sphenoid in blue, ethmoid in yellow, and a single frontal bone in light red. We'll remember these bones by the mnemonic step of 6. S for sphenoid bone, T for temporal bone, E for ethmoid bone, P for parietal bone, O for the occipital bone, and F for the frontal bone. Could you tell me which suture is found on the newborn skull, but not the adult skull? Comment below. You don't want to miss this mnemonic for the skull bones. We are taking the steps for this one. The 8 bones of the neurocranium are the 2 temporal bones. तो यहाँ पर तो नहीं अच्छे से समझ में आया। Here इसका in लास्ट purple, क्वेश्चन जो था उसको 2 हमने parietal bones in green, and a single occipital bone in orange, sphenoid in blue, ethmoid in yellow, and a single frontal bone in light red. We'll remember these bones by the mnemonic step of 6. S for sphenoid bone, T for temporal bone, E for ethmoid bone, P for parietal bone, O for the occipital bone, and F for the frontal bone. आगे ट्रिक बाद में बताएंगे, लेकिन जो है स्टेप अप से आप याद रख सकते हैं कि हमें कितने Could you tell me which suture is found in the newborn skull, but ये किया, और स्टेप अप से याद करेंगे। स्टेप ऑफ STE, स्टेप ऑफ S से स्फेनॉइड, T से टेम्पोरल, E से इथमॉइड, P से पैरेटल, O से ऑसिपिटल, F से फ्रंटल। तो ये याद करने का है कि यहाँ पर 6 बोन होते हैं, और 6 बोन में जो है टेम्पोरल 2 होता है, पैरेटल 2 होता है, और हम बस यही 2 होता है, और सब जो है 1-1 होता है। ये कहाँ पर होता है आगे की वीडियो में बात करें, आगे जब पढ़ेंगे not तब the बात adult करेंगे। skull? और सबसे Comment पहले ये जो below. क्वेश्चन था वो
क्रोम में जाते हैं। क्रोम बाबा, आंसर हमको चाहिए कौन सा है। तो these bones are held together by a strong fibrous elastic tissue called sutures. The spaces between the bones that remain open in babies and young children are called frontales. Sometimes they are called soft spots या cranial suture बोलते हैं शायद. Skull of the newborn for men adults. cranial suture जब cranium में पाया जाता है इस suture sagittal suture आओ यही सूचर. तो ये भी थोड़ा सा याद कर लेना अच्छी बात है. कोरोनल सूचर, ये अगर कोरोनल सूचर है फ्रंटल बोन है. ये पेराइटल, ये पेराइटल, ये सूचर सेजाइटल सूचर. सेजाइटल प्लेन तो पहले ही बात कर चुके हैं इस टाइप से. ये फ्रंटल है, फ्रंट की ओर. ओसिपिटल बोन, ओसिपिटल में लिम्बोइड सूचर, लिम्बोइड सूचर यहाँ पर देखने को मिलता है. ये क्या है सेजाइटल सूचर और ये है फ्रंट कोरोनल सूचर. फ्रंटल बोन, फ्रंटल कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर. और यहाँ पर एक ये जो है मतलब जो जैसे कि हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा था और प्लेन उसी टाइप से है, लेकिन एक जो है ना यहाँ पर चेंज हो रहा है. पेराइटल और लिम्बोइड सूचर, लिम्बोइड सूचर ये थोड़ा सा याद रखने वाली है. लिम्बोइड सूचर, ओसिपिटल सब और ये सब जो डिवाइड करता है उसको लिम्बोइड सूचर बोलता है. सुपेरियर टेम्पोरल रीजन. तो यहाँ से एक बार कट करते हैं. ये सेजाइटल सेम है, ये कोरोनल है, ये लिम्बोइड सूचर है. बस इतना याद रखना है. फ्रंटल आप जानते ही, ये है पेराइटल, ये भी पेराइटल, ये है ओसिपिटल. और इससे नीचे जो कान के पास होगा टेम्पोरल लाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा. सुपेरियर टेम्पोरल लाइन आगे की ओर अगर अच्छे से दिखे और भी तो फ्रंटल यहाँ पर लिम्बोइड सूचर लगभग फ्रंटली कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर, लिम्बोइड, ओसिपिटल, फ्रंटली. हाँ ये थोड़ा सा याद. यहाँ पर तीनों का अगर जंक्शन हो तो इस जंक्शन को क्या होगा फ्रंटाइल और यहाँ पर पीछे में होगा ओसिपिटल फ्रंटाइल और उसके सूचर को बोलता है लिम्बोइड सूचर. और ये है सेजाइटल सूचर, ये है कोरोनल सूचर. और जो इसमें सब हो गया इंटीरियर फ्रंटाइल और ये है पोस्टीरियर फ्रंटाइल, ओसिपिटल फ्रंटाइल और सूचर भी देख सकते हैं यहाँ पर. लिम्बोइड सूचर, ओसिपिटल ये फ्रंटल है और यहाँ पर ये फ्रंटल थोड़ा दिख नहीं रहा. हाँ फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन है. और यहाँ पर मेटोपिक सूचर, ये मेटोपिक सूचर इंटीरियर फ्रंटली है. कोरोनल सूचर, पेराइटल बोन्स, सेजाइटल सूचर, लिम्बोइड सूचर, पोस्टीरियर ओसिपिटल. यहाँ पर ये फ्रंटल सूचर में जो है ना सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इंटीरियर फ्रंटली और यहाँ पर पोस्टीरियर फ्रंटली, ओसिपिटल बोन, लिम्बोइड सूचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ये तो हम जानते हैं सेजाइटल सूचर, पेराइटल बोन, कोरोनल सूचर, मेटोपिक सूचर यहाँ पर इंटीरियर फ्रंटली.